فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار اقطابه في النار اقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار بجحافه يجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. باب رقم 10. چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. جزاء من يخالف قوله فعله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري في كتاب بدء الخلق. باب رقم 10. باب صفة النار. جزاء من يخالف قوله فعله. اس شخص کا بدلہ جس کا فعل اس کے قول کے مخالف ہو. اس شخص کا بدلہ جس کا فعل اس کے قول کے مخالف ہو. اس شخص کا بدلہ جس کا عمل اس کے قول کے مخالف ہو. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یجاء بالرجل یوم القیامت. ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا. آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، یعنی ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا. فیلقی فی النار اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. فیلقی فی النار پس ڈال دیا جائے گا اسے آگ میں. فتندلق اقطابہ فی النار نکل پڑیں گی اس کی انتڑیاں آگ میں. فتندلق اقطابہ باہر نکل پڑیں گی اس کی انتڑیاں فی النار آگ میں. فیدور کما یدور الحمار برحاہ وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. فیدور کما یدور الحمار برحاہ وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. فیجتمع اہل النار علیہ جہنم والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. فیجتمع اہل النار علیہ اہل جہنم اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. فیقولون اور اس سے کہیں گے اے فلان اے فلان ما شأنک تمہیں کیا ہو گیا. فیقولون اور اس سے کہیں گے اے فلان ما شأنک تمہیں کیا ہوا ہے. الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر کیا تم ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے. الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر کیا تم ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے نہ تھے. قال وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا. کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتیہ اور تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتیہ اور تمہیں
برائی سے روکتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ متفقن علیہ، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ وہذا لفظ البخاری، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب بدء الخلق میں 10ویں باب میں روایت کیا، اور باب کا عنوان ہے باب صفت النار۔ باب صفت النار، اس عنوان کے باب میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وہذا لفظ البخاری، جی ہاں، وہذا لفظ البخاری، لفظ البخاری بولیے، ہاں بالکل، لفظ البخاری فی کتاب بدء الخلق، وہذا لفظ البخاری، یا پھر وہذا لفظ المسلمی اگر مسلم کا ذکر آئے تو، ہاں لیکن یہ نسبت ہے نا بخاری اس کی اظہار کریں گے۔ ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں باہر نکل پڑیں گی اور وہ انہیں لے کر ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل جہنم اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے نہ تھے؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا اور ان کا ارتکاب کرتا تھا۔ اس باب کا عنوان ہے اس شخص کا بدلہ جس کا فعل اس کے قول کے مخالف ہو، جس کے قول و عمل میں تضاد ہو، جس کا قول کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، یعنی وہ جو کہتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے ہم حدیث کے شرح المفردات کو کر لیں گے تاکہ معنی مزید واضح ہو جائیں۔ نہیں، یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو مؤلف نے جو باب باندھا ہے وہ جزاء من یخالف قولہ فعلہ، ہاں جی بالکل بالکل، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو باب ہے وہ تو باب صفت النار ہے۔ شرح المفردات، الکلمہ شرحها، یلقا فی النار یطرح فیہا، یلقا فی النار کے معنی ہے یطرح فیہا، اس میں پھینکا جائے گا، یلقا فی النار یعنی یطرح فیہا، آگ میں پھینکا جائے گا۔ فتندلق، تندلق کے معنی ہے تخرج، نکل پڑیں گی، نکل جائیں گی، تندلق تخرج، نکل جائیں گی، نکل پڑیں گی۔ اقطابہ امعاؤہ، اس کی انتڑیاں، اقطاب کے معنی ہے امعاء، انتڑیوں کے معنی میں ہے۔ واحدھا قطبن، اس کا واحد قطبن ہے، اقطاب یہ جمع ہے، اس کا واحد قطبن ہے اور اس کے معنی ہے انتڑیاں۔ مثل احمال، احمال و حمل، جیسے کہ حمل کی جمع ہے احمال، حمل کے معنی بوجھ کے ہیں، اس کی جمع احمال ہے۔ اسی طرح خطبن کی جمع اقطاب ہے، حمل کی جمع جس طرح احمال ہے اسی طرح خطبن کی جمع اقطاب ہے۔ برحاہ بتاحونہ، برحاہ کے معنی رحا اصل لفظ ہے، اس کے بعد با اس کے ساتھ لگا ہے اور اس کے بعد ہا اس کے ساتھ مضاف ہوا ہے۔ برحاہ کے معنی ہے بتاحونہ، اس کی چکی کے ساتھ۔ رحا کے معنی ہے، رحا کے معنی ہے تاحون، چکی، الرحا کے معنی ہے الطاحون، چکی۔ برحاہ بتاحونہ، اپنی چکی کے گرد۔ ای فلان، یا فلان، یا بھی حرف ندا ہے، جیسے یا حرف ندا ہے اسی طرح ای بھی حرف ندا ہے، تو ای جو ہے یا کے معنی میں ہے، یا فلان کے معنی میں، ای فلان۔ المعروف کل ما ندب الیہ الشرع، ہر وہ چیز جس کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہو یا جس کی طرف شریعت نے بلایا ہو۔ جی یا فلانو، جی یا فلانو، نون کا اعراب جو ہے ضمے کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ مضاف نہیں ہے، اگر وہ مضاف ہوتا تو نصب کے ساتھ ہوتا، ورنہ وہ مبنی ہے علی الضم، مبنی علی الضم ہے منادہ ہونے کی وجہ سے۔ المعروف کل ما ندب الیہ الشرع،
ہر وہ چیز جس کی طرف شریعت نے بلایا ہو یا جس کی شریعت نے ترغیب دی ہو. ہر وہ چیز جس کی شریعت نے دعوت یا ترغیب دی ہو، یہ معروف ہے. المنکر کل ما قبحہ الشرع، ہر وہ چیز جسی شریعت نے برا کہا ہو. کل ما قبحہ الشرع، ہر وہ چیز جسے شریعت نے برا کہا ہو. ٹھیک ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. سب سے پہلے حدیث کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، یہ بھی مسلمان ہیں، بلکہ اسلام ہی کی حالت میں یہ پیدا ہوئے اور ان کے والد بھی مسلمان ہیں. اسامہ بن زید ابن حارثہ، اسامہ ابن زید ابن حارثہ. ابو محمد ان کی کنیت تھی، کہا جاتا ہے کہ ابو زید ان کی کنیت تھی. معروف ابو محمد ہے، لیکن بعض اہل علم ابو زید بھی نقل کرتے ہیں ان کی کنیت کے طور پر. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ تھیں. انہوں نے اسلام کی حالت میں آنکھیں کھولیں. 6 نبوی میں یہ پیدا ہوئے، ہجرت سے 7 سال پہلے، ہجرت سے 7 سال پہلے 6 نبوی میں یہ پیدا ہوئے مکے میں، اور مدینے میں ان کا انتقال ہوا 54 ہجری میں. ہجرت سے 7 سال پہلے 6 نبوی میں پیدا ہوئے اور مدینے میں 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. اللہ کے رسول 54 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، ان کے یہ بیٹے تھے. اور یہ بھی بہت محبوب تھے، اس لیے ان کو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. بلکہ کہتے ہیں الحب ابن الحب، الحب ابن الحب، یعنی محبوب کے بیٹے محبوب. یعنی ان کے والد بھی محبوب تھے اور یہ بھی محبوب تھے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں ان کا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ مقرر کیا تھا. انہوں نے سوال کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ اسامہ اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے والد سے زیادہ محبوب تھے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی تھا اور ان کا زہد تھا، اور پھر یقیناً ان کا حسن سلوک تھا. جی، ابو محمد یا ابو زید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے شام کی طرف بھیجنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا، اس کا کمانڈر انہی کو بنایا تھا. اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جب اپنی خلافت کے دور میں ان کو لشکر کی قیادت سے ہٹانے سے انکار کر دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور اس فوج میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ بھی تھے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان کے بارے میں جانتے تھے کہ کس قدر یہ صلاحیت والے ہیں. ان سے 128 احادیث مروی ہیں. 128 احادیث ان سے مروی ہیں، جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں. 128 حدیثیں ان سے مروی ہیں. ان میں 15 متفق علیہ ہیں. 128 میں 15 متفق علیہ ہیں، اور 2 صحیح بخاری میں ہیں اور 2 صحیح مسلم میں ہیں. 128 کل احادیث جو ان سے بیان کی جاتی ہیں، 15 متفق علیہ ہیں اور 2 صحیح بخاری میں ہیں اور 2 صحیح مسلم میں ہیں. رضی اللہ عنہ. اس حدیث کی تشریح کی طرف آئیے. اس حدیث میں اس شخص کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکیوں کو انجام نہیں دیتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا اور خود برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا. اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ لایا جائے گا اور آگ میں پھینکا جائے گا. ڈالنا الگ ہے، پھینکنا الگ ہے. تو اس کو پھینکا جائے گا، اور اس قدر شدت سے پھینکا جائے گا کہ اس کا پیٹ پھٹ پڑے گا
اور अंतड़ियां बाहर निकल जाएंगी। और अलम और तकलीफ की शिद्दत की वजह से वो अपनी अंतड़ियों के गिर्द ऐसे घूमेगा जैसा कि गधा चक्की के गिर्द घूमता है। आपने पहले आटे के तौर पर जो अब जो नई मशीनें निकली हैं आटे पीसने के लिए, इससे पहले आटा पीसने के लिए जो मशीनें थी, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशीन बीच में आटा रखा जाता था, हर तरफ से पत्थर होते थे, एक रस्सी से गधे को या फिर किसी जानवर को बांध दिया जाता, वो जब घूमता तो वो चक्की घूमती थी और उस तरह आटा पीसा जाता था। तो एक बुरी मिसाल है दी गई, एक बुरी मिसाल है कि एक तो गधे के साथ मिसाल दी गई और उसके बाद एक सख्त तकलीफ की मिसाल दी गई कि किस कदर वो तकलीफ में होगा, कि तकलीफ की शिद्दत से वो ऐसे घूमेगा जैसे कि गधा चक्की के गिर्द घूमता है। लोग अहले जहन्नम हैं, जब उसे देखेंगे तो ताज्जुब होगा उन्हें, उसके गिर्द जमा हो जाएंगे, क्योंकि एक अजीब गरीब अजाब होगा जो उसे दिया जा रहा होगा। और फिर दुनिया में तो वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, इसलिए अहले जहन्नम उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और पूछेंगे कि तुम तो यहाँ कैसे पहुँच गए जबकि तुम हमें नेकियों का हुक्म देते थे और बुराइयों से रोकते थे। तो वो जवाब देगा कि मैं तुम्हें नेकियों का हुक्म देता था लेकिन उनको अंजाम नहीं देता था और बुराइयों से रोकता था और उनका इर्तिकाब करता था। इस माने की कुरान मजीद में बाज़ आयात भी हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल की मजम्मत बयान की है। जैसा कि सूरह बकरा में है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, इस हाल में कि तुम अल्लाह की किताब की तिलावत करते हो? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? एक तो ये कि अल्लाह की किताब तुम्हारे पास है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि लोगों को नेकियों का हुक्म देना और खुद उसको अंजाम न देना कितना बुरा अमल है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम नेकियों का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, यानी उसका ख्याल नहीं रखते। ये इसको कहते हैं इस्तिफाम इंकारी। इस्तिफाम इंकारी अतअमुरूना, ये जो ये इस्तिफाम पाया जाता है, क्या तुम हुक्म देते हो, इस्तिफाम इंकारी जो तौबीख के लिए होता है, यानी सरजनिश करने के लिए, सरजनिश करने के लिए होता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये बात किताब के खिलाफ भी है और अक्ल के खिलाफ भी है। इसीलिए अल्लाह तबारक ने फरमाया कि अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। इसी तरह सूरह सफ में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि, अल्लाह तबारक तआला के पास ये बहुत नाराज़गी वाली बात है कि तुम वो बात कहो जो तुम नहीं करते हो। इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब किया। इसका मफ़हूम ये हुआ कि जो बात बयान की जा रही है वो ईमान का तकाज़ा है। ईमान का तकाज़ा ये है कि इंसान ऐसी बात ना कहे जिस पर वो अमल नहीं करता, जिसका वो ख्याल नहीं रखता। वो बात कहना ये ईमान के तकाज़े के खिलाफ है। और ये बात बताया और ये कहा गया कि ये चीज़ अल्लाह तबारक तआला के पास सख्त नापसंदीदा है। इसका जो हुक्म है वो ये कि अल्लाह तबारक तआला के पास सख्त नापसंदीदा है। और अल्लाह तबारक तआला ने सूरह हूद में शुएब अलैहिस्सलाम के कौल के तौर पर इस बात को बयान किया कि उन्होंने अपनी कौम को नसीहत करते हुए एक बात ये भी कही, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अन्हाकुम अन्हु, मैं जिस बात का तुम्हें हुक्म देता हूँ उसका खुद इर्तिकाब करते हुए तुम्हारी मुखालिफत नहीं करना चाहता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें शिर्क से मना करूँ, नाप तोल में कमी बेशी करने से मना करूँ और मैं खुद शिर्क का इर्तिकाब कर लूँ और फिर नाप तोल में कमी बेशी करूँ, ये नहीं हो सकता। यानी मेरा फेल मेरे कौल के खिलाफ नहीं हो सकता। इससे बात मालूम होती है कि अंबिया का जो तर्ज अमल है वो कौल और अमल के मुताबिकत का है। अंबिया का तर्ज अमल कौल और अमल के मुताबिकत का है, कौल और अमल में मुखालिफत का नहीं है। लिहाजा इस हदीस में सख्त तंबीह है उलमा के लिए, उम्मत के दायान के लिए, दायान हक़ के लिए और सालिहीन के लिए, जो लोगों को अच्छी बातें बताते हैं और अच्छी बातों की तरगीब देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं लेकिन खुद उसका ख्याल नहीं रखते। और इसमें तंबीह है वालिदैन के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी, जो अपने बच्चों को और अपने तलबा को अच्छी बातें सिखाते हैं और अच्छी बातों की तरगीब देते हैं, बुराइयों से नफ़रत दिलाते हैं और उनसे दूर रहने की तलकीन करते हैं, लेकिन खुद इनका ख्याल नहीं रखते। इसी तरह इसमें तंबीह है मजहबी रहनुमाओं को भी और सियासी लीडरों को भी, जो अपनी कौम के लोगों को अच्छी बातों की, कुर्बानियों की तालीम देते हैं लेकिन खुद उसके बिल्कुल बरअक्स करते हैं, खुद इसके बिल्कुल
बरस करते हैं। लिहाजा आदमी के लिए ये वाजिब है, ये ज़रूरी है कि जब वो लोगों को कोई अच्छी बात बताता हो, खुद भी उस पर अमल करने की कोशिश करे, और बुराई से जब रोकता हो तो खुद भी अपने आप को उस बुराई से दूर रखे। क्योंकि उसमें दो बातें पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आदमी जब किसी नेकी को अंजाम देता है और उसके बाद उसकी तरगीब देता है और किसी बुराई से दूर रहता है और फिर लोगों को बुराई से दूर रहने की तरगीब देता है, तो उसकी बात में फिर असर पैदा होता है, जोर पैदा होता है, और वो एक तजुर्बेकार आदमी की तरह अपनी इस बात को बयान कर सकता है कि ये नेकी कितना फ़ायदेमंद है और बुराई से दूर रहना कितना फ़ायदेमंद है। तो एक तजुर्बेकार शख्स की तरह असरअंदाज हो सकता है, वो बात में असर पैदा होती है उसके। और दूसरी बात यह कि एक वाजिब पर वो अमल कर रहा है, क्योंकि जब वो बुराई से रोकता है तो फिर वाजिब है कि वो खुद भी बुराई से दूर रहे, और जब नेकी का हुक्म देता है तो फिर वाजिब है कि वो नेकी करे। लिहाजा वो एक वाजिब को अंजाम देता है। तो गोया आदमी जब अपने कौल व अमल में मुताबिकत रखता है तो गोया एक वाजिब को वो पूरा करता है, और दूसरा ये कि उसकी बात में असर पैदा होता है। लिहाजा आदमी को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके जब नेकियों का हुक्म दे रहा हो तो उनका ख्याल भी रखे, और बुराई से रोक रहा हो तो उनसे अपने आप को दूर भी रखे। हर आदमी के लिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज़िम्मेदार हैं, किसी फ़र्द के या कुछ अफराद के या किसी कौम के, या फिर उम्मत में उनको जो है कोई ख़ास ऐसा मकाम हासिल है, जो नासे की हैसियत रखते हैं। तो उनके लिए ये बात बहुत ही अहम है कि वो ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि अपनी हालत को दूसरों की हालत से मुख्तलिफ रखें। अपनी हालत में वो दुरुस्ती रखें, वो भलाई, वो अच्छाई रखें जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ रखती हो, ताकि उनकी बातों का असर पैदा हो। क्योंकि जब कोई आदमी लोगों को नेकियों का हुक्म देता है, खुद नेकी नहीं करता, और बुराइयों से रोकता है, खुद बुराइयों का इर्तिकाब करता है, तो इसका मतलब ये कि अपने इस अमल में, अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर के इस अमल में वो सच्चा नहीं है। क्योंकि अगर वो सच्चाई होती तो वो खुद अमल करता, यानी अगर उसे पूरा यकीन होता कि ये नेकी इस कदर फ़ायदेमंद है, कामिल यकीन होता उसे इस बात पर, और ये बुराई जो नुकसानदेह है उसे कामिल इस बात पर पुख्ता यकीन होता, तो अपने आप को उस बुराई से दूर रखता और अपने आप को उस नेकी से आरास्ता रखता। लेकिन वैसा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ये अमल अकीदे के मुताबिक नहीं है, वो पूरा उसका ईमान पुख्ता नहीं है। और फिर ये अक्ल के खिलाफ भी है कि आदमी जो है दूसरों को तो अच्छी बातें बताए, लेकिन जिस चीज़ में फ़ायदा है दीन का, दुनिया का, अपने आप को उससे दूर रखे, और दूसरों को बुराई से रोके, और जिसमें नुकसान है दीन का, दुनिया का, अपने आप में उसका इर्तिकाब करता जाए। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम इस चीज़ को मेयार करार देते हैं कि आदमी जिन बातों पर अमल करता है उन बातों का ही हुक्म दे, दूसरी बातों का हुक्म न दे, जिन बुराइयों से दूर होता है उन बुराइयों से ही रोके, दूसरी बुराइयों से न रोके। या फिर ये कि हम उमूमी तौर पर कहें कि कोई भी शख्स अगर लोगों को अच्छी बात बताता है तो उस पर ज़रूरी है कि वो खुद भी अच्छी बात पर अमल करता हो, और बुरी बात से रोकता है तो खुद भी ज़रूरी है कि बुरी बात से रोकता हो। अगर इसको हम मेयार करार देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम इंसान अंजाम देगा या नहीं देगा, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान कामिल नहीं होता। इंसान के अंदर इंसान कोताही सरजद होती है उससे, और फिर खलल वाक़ हो जाता है उसके दीन के लिहाज से, उसके अखलाक के लिहाज से। तो ऐसी सूरत में क्या वो अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम, जो कि वाजिब है, क्योंकि ये वाजिब है कि आदमी उसको रोके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, भलाई की बात बताए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ये उस पर वाजिब है। लेकिन अगर वो उस पर जब तक अमल न करता हो, जब तक वो ये काम अंजाम नहीं दे सकता, तो क्या हम ये तसव्वुर रख सकते हैं कि फिर ये काम अंजाम दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ हमें एक बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये कि ये चीज़ यकीनन वाजिब है कि इंसान बुराइयों से रोकता हो तो खुद भी बुराई से दूर रहे, नेकियों का हुक्म देता हो तो खुद भी नेकियों को अंजाम दे। लेकिन इसी तरह अमल बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर ये भी वाजिब है, दोनों चीज़ें वाजिब हैं। इंसान अगर दोनों चीज़ों को छोड़ देगा तो दो वाजिब छोड़ने का गुनहगार होगा। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ
अल्लाह तबारक व तआला ने अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो अपने आप को भूल जाते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो तौबीख की है, उनकी जो सरजरिश की है, इस बुनियाद पर नहीं की कि वो लोगों को नेकियों का हुक्म देते हैं, बल्कि इस बुनियाद पर की कि खुद नहीं करते, उस बुनियाद पर की है, हुक्म देने पर नहीं। तो ये भी एक मुस्तकिल हुक्म है कि आदमी अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करे, और ये भी एक मुस्तकिल हुक्म है कि आदमी अपने अंदर भी वो चीज़ें पैदा करे। तो आदमी को चाहिए कि वो अगर उसके अंदर खलल पाया जाता है तब भी वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस काम को अंजाम दे। ये जो हदीस है जिसमें मजम्मत की गई है, ये वो आयत है, ये कामिल तौर पर इंसान के अंदर पाई जानी चाहिए उस लिहाज से, यानी कामिल मोमिन के तौर पर। या फिर ये चीज़ें वाजिब ज़रूर है, लेकिन ये खुद अपनी जगह एक मुस्तकिल अमल है, जबकि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर खुद भी अपनी जगह एक मुस्तकिल अमल है। लेकिन आदमी जो है इसको बुनियाद बनाकर उसको छोड़ नहीं सकता। किसको? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को, क्योंकि उस सूरत में वो दो गुनाहों का इर्तिकाब करेगा। एक तो ये कि उसने जो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम भी नहीं किया, और दूसरा ये कि उसने उस पर अमल भी नहीं किया। ठीक है, यही फहम है जो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है सलफ का और खलफ का। सलफ और खलफ तमाम ने इससे यही चीज़ समझी है। मैं इसकी इबारत पढ़ देता हूँ ताकि ये चीज़ जो है आपके सामने वाज़ेह तौर पर सामने आए। क़ाल नबवी रहमहुल्लाह क़ाल उलमा, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सही मुस्लिम की शरह में, उलमा कहते हैं वला युश्तरतु फिल आमिरी वन नाही अन यकून कामिल अल हाल। आमिर और नाही यानी नेकियों का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले के अंदर ये शर्त नहीं है कि वो कामिलुल हाल हो, यानी उसकी हालत मुकम्मल हो, वो मुकम्मल तौर पर बुराइयों से रुकता हो और मुकम्मल तौर पर नेकियों का हुक्म देता हो, ये शर्त नहीं है। मुमतलिसन मा यामुरु बिही, कि वो अमल करता हो जिसका वो हुक्म देता हो, मुज्तनिबन मा यन्हा अन, जिससे मना करता हो, उससे रुकने वाला हो। बल अलैहिल अम्रु व इन काना मुखिल्लन, बल्कि उसे चाहिए कि नेकी का हुक्म दे अगरचे कि वो मुखिल हो, यानी खलल हो उसके, बिमा यअमुरु बिही, जिस चीज़ का वो हुक्म देता है उसके अंदर उस चीज़ पर अमल करने में अगरचे कि खलल पाया जाता हो, पर उसके बावजूद भी वह हुक्म दे। वन्नहयु व इन काना मुतलब्बिसन बिमा यन्हा अन्हु, और उस पर ज़रूरी है कि वो बुराई से रोके अगरचे कि वो उस बुराई से आलूदा ही क्यों ना हो जिससे वो रोकता है। फ़इन्नहु यजिबु अलैहि शैआन, इसलिए कि उस पर दो चीज़ें वाजिब है। अन यअमुरा नफ्सहु व यन्हाहा, कि वो अपने आप को हुक्म दे नेकी का और उससे मना करे। व यअमुरा गैरहु व यन्हा, और दूसरों को भी हुक्म दे नेकी का और बुराई से मना करे। फ़इज़ा अखल्ल बिअहदिहिमा, और अगर उनमें से किसी एक चीज़ में खलल वाक़ हो जाए, कैफ़ युबाहु लहु अल इखलालु बिल आखर, तो कैसे उसके लिए जायज़ हो सकता है कि दूसरी चीज़ में भी वो खलल का सबब बने। तो इससे ये बात मालूम होती है कि ये जो चीज़ है वो इंसान के लिए शर्त नहीं है, ये अहम है, वाजिब है, ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शर्त नहीं है। एक मोमिन को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखे, लेकिन इसका मफहूम ये नहीं कि अगर वो इसका ख्याल नहीं रखता है तो वो नेकियों का हुक्म भी ना दे, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो कामिल हाल हो। अगर ऐसा होगा तो फिर एक वाजिब है, एक इस्लामी शाइर में से एक शाइरा है, और फिर लोगों तक नेकी की बात पहुंचाना है, बुराई लोगों पर वाज़ेह करना है, फिर ये काम खलल वाक़ हो जाएगा और फिर लोगों को ये बात वाज़ेह नहीं होगी। तो आदमी को अपने तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए, वरना हो सकता है कि शैतान जो है इसको बुनियाद बनाकर लोगों को इस फरीज़े से दूर कर दे। इसीलिए कहते हैं क़ील लिल हसन अल बसरी, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया, इन्ना फुलानन ला यइज़ु, कि फला आदमी लोगों को नसीहत नहीं करता। वह यक़ूल, और कहता है, अख़ाफ़ु अन अक़ूलु मा ला अफ़अलु, कि मुझे अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो बात कह दूं जो मैं करता नहीं, यानी मेरा फ़ेल मेरे कौल के मुखालिफ हो जाए। फ़क़ाल अल हसन, हसन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, व अय्युना यफ़अलु मा यक़ूलु, कि हम में कौन शख्स है जो कि हाँ जो कहता है वही करता भी हो। ये उनका तक़वा है, वरा है, वो अपनी नेकी को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। वरना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नेकी और तक़वा के लिहाज से जो इतने बड़े मर्तबे पर थे तो यकीनन वो जो करते थे उस पर अमल भी करते थे। लेकिन आम लोगों की सूरत हाल यही है कि कौन ऐसा शख्स है जो कहता हो वो मुकम्मल करता भी हो, यानी उसके कौल व अमल में मुकम्मल मुताबिकत हो सकती हो। वद्द शैतानु अन्नहु ख़ज़्ज़फ़िर बिहाज़ा, शैतान ने चाहा कि वो इस शख्स से कामयाब हो जाए, यानी इस शख्स पर उसका दाऊ चल जाए। इस तरह शैतान ने इस तरह चाहा कि इस शख्स पर उसका दाऊ चल जाए।
फलम यअमुर अहदुन बिमारूफिन वलम यनहा अन मुनकरिन, ताकि वो किसी को ना तो नेकी की बात बताए और ना किसी बुराई से उसे रोके। तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना कि आदमी को यकीनन इस बात का ख्याल रखना चाहिए जिसका एक हदीस में जिक्र किया, लेकिन ये शर्त नहीं है नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में, बल्कि आदमी को इस काम का भी ख्याल रखना चाहिए और कोशिश पूरी तरह ये करनी चाहिए कि वो उससे उसका ख्याल रखे। बहुत मुमकिन है कि आज वो उस नेकी को अंजाम ना दे रहा हो, लेकिन वो नेकी की तरगीब देते देते खुद उसका आदी हो जाए और अल्लाह तबारक ताला इसकी इस नेकी की वजह से उसको उस नेकी की तौफीक दे दे। और ये भी मुमकिन है कि आज वो उस बुराई से बाज ना आता हो, लेकिन लोगों को बुराई से रोकते रोकते खुद भी उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। और ये भी मुमकिन है कि इसकी इस नेकी की वजह से अल्लाह तबारक ताला उस बुराई से उसके अंदर नफरत पैदा कर दे और उससे रुकने की उसके अंदर तौफीक पैदा हो जाए। मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत है, लेकिन मुनाफिक उसको कहते हैं मुकम्मल मुनाफिक जो कि दिल से काफिर होता है, जबान से जो है वो इस्लाम का इजहार करता है, लेकिन जो आदमी इस तरह दिल से तो मुसलमान है लेकिन उसके अमल में कोताही पाई जाती है, तो ये नाकिस ईमान वाला मोमिन है, ये नाकिस वाला ईमान वाला मोमिन है। और आम तौर पर लोगों के अंदर ये जो खलल पाया जाता है कि उनका अमल उनके कौल के मुताबिक नहीं होता, तो वो निफाक की वजह से नहीं होता, बल्कि आम तौर पर ईमान की कमजोरी की वजह से होता है, नक्स ईमान की वजह से होता है। हाँ, ये फिस्क है, ये फिस्क है। अगर फिस्क की एक दो किस्में करते हैं तो ये फिस्क असगर होगा, लेकिन अगर ये मुनाफिक की तरफ से तो मुनाफिक असल में काफिर है, असल में काफिर है, उसकी लिहाज से वो काफिर कहलाएगा। अब एक अहमुल फवाइद की तरफ आइए, उसके बाद फिर आप सवाल कर सकते हैं कुछ देर के लिए। ज़ुहूरुल हक़ाइक़ि यौमुल क़ियामती, हक़ाइक़ का ज़ाहिर हो जाना क़ियामत के दिन। ज़ुहूरुल हक़ाइक़ि यौमुल क़ियामती, हक़ाइक़ का ज़ाहिर हो जाना क़ियामत के दिन, यानी क़ियामत के दिन हक़ाइक़ ज़ाहिर होंगे और उसी के मुताबिक बदला होगा, क्योंकि वो तो ज़ाहिर में लोगों को नेकी का हुक्म देता था, लोगों को मालूम ही नहीं था कि वो नेकी नहीं करता, वहां लोगों को ताज्जुब होगा ना इसलिए जहन्नम में, और बुराई से रोकता था, लोगों को मालूम ही नहीं था वो खुद बुराई करता है, लेकिन वहां मालूम हो जाएगा। तो ज़ुहूरुल हक़ाइक़ि यौमुल क़ियामती, क़ियामत के दिन हक़ाइक़ ज़ाहिर हो जाएंगे। अज़ाबुल मुराई अबिल मुखादिई अशद्दु मिन अज़ाबि गैरिही मिनल उसाती, दिखावा करने वाले और धोखा देने वाले को जो अजाब होगा वो ज्यादा शदीद होगा दूसरे गुनहगारों के अजाब के मुकाबले में। अजाबुल मुराई अविल मुखादी, दिखावा करने वाले और धोखा देने वाले को जो अजाब होगा, अशद्दु ज्यादा शदीद होगा, मिन अजाबि गैरिही मिनल उसाती, दूसरे उसके सिवा दूसरे गुनहगारों के अजाब से। अल हज़्रु मिनन निफाक़ि वर्रियाई, अल हज़्रु मुतनब्बे करना, चौकन्ना करना, मिनन निफाक़ि निफाक से, वर्रियाई और रियाकारी से, निफाक और रियाकारी से चौकन्ना करना, निफाक और रियाकारी से लोगों को खबरदार करना। तो इस हदीस में जो बातें बयान की गई हैं उसके ताल्लुक से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। जी हदीस का सियाक यही कहता है कि वो गुनहगार मोमिन होगा। जी हाँ, वो गुनहगार मोमिन होगा। जी बिल्कुल। नहीं, वो भी तो जहन्नुम में ही है, क्योंकि अहलुन नार कहा ना, फयज्तमिउ अहलुन नार। हाँ, अल्लाह तबारक ताला इस तरह कुछ हालात को वाज़ेह करेगा। अगर उनको होश नहीं रहेगा तो फिर अजाब का फायदा क्या होगा? अजाब उनके पूरे होश हवास के साथ होगा, जिसको महसूस करेंगे, अपने इर्द गिर्द को भी महसूस करेंगे और अपने खुद अजाब को भी महसूस करेंगे।
उसी में आएगा, लेकिन तरगीब देने से रुकना नहीं चाहिए, उसी में आएगा वो। कैसे नहीं मिलेगा आपको? जो है आदमी को उसका अजर यकीनन मिलेगा, जिसने तरगीब दी और उसकी तरगीब देने की वजह से दूसरे लोगों ने अमल किया तो उसका फायदा भी होगा उसको। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। एक आदमी जो है खुद वो नेकी करना ही नहीं चाहता, वो शख्स है। दूसरा वो शख्स है जो करना तो चाहता है लेकिन नफ्स की कमज़ोरी की वजह से नहीं कर पाता, तो वो पहले शख्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। ये दूसरा शख्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। किस चीज़ के लिए? इस अमल से बचने के लिए सिवाय इसके कुछ नहीं कि आदमी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों का जो सवाब मुकर्रर किया है उसका अपने अंदर सही शऊर पैदा करे, एहसास पैदा करे, और गुनाहों का जो अज़ाब है उसका अपने अंदर सही एहसास पैदा करे। और जो उमूमी जो तरीक़े बताए गए हैं अपने दिल के ज़ंग को दूर करने के लिए, दिल के ज़ंग को दूर करने के लिए उन्हीं तरीक़ों को वही तरीक़े इंसान को इख्तियार करना चाहिए। जैसे कुरान मजीद की तिलावत है तदब्बुर के साथ, या मर्दों के लिए क़ब्रों की ज़ियारत है, या बीमारों की ज़ियारत है, बीमारों के से मिलना है, और ख़िदमत खल्क़ के मुख्तलिफ़ काम हैं। तो बहरहाल आदमी को चाहिए कि कुछ ऐसे काम जो उसके दिल को साफ़ करते हों, दिल के ज़ंग को दूर करते हों, वो उनका ख्याल रखें। इसके अलावा और कोई ऐसी कोई ख़ास दुआ इसके लिए मुकर्रर नहीं की गई सिवाय इसके कि जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाई थी, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उन अल्फाज के साथ वो जो दुआएं आई हैं वो सारी उसमें शामिल होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल की जा सकती। ठीक है, यहाँ हम लोग जी अन उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, युजाउ बिर्रजुलि यौमुल क़ियामती, क़ियामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, फ़युल्क़ा फ़िन्नारी, उसे आग में फेंक दिया जाएगा, फ़तंदलिक़ु अक़ताबुहु फ़िन्नारी, उसकी अंतड़ियाँ गिर पड़ेंगी, बाहर निकल जाएंगी आग में, फ़यदूरु कमा यदूरुल हिमारु बिरहाहु, वो ऐसे घूमेगा जैसा कि गधा चक्की के गिर्द घूमता है। फ़यज्तमिउ अहलुन्नारि अलैहि, जहन्नम वाले उसके गिर्द जमा हो जाएंगे। फ़यक़ूलून, और कहेंगे, ऐ फलान व मा शानुका, ऐ फलान मा शानुका, ऐ फलान तुम्हें क्या हुआ है। अलैस कुन्त तअमुरुना बिल मारूफ़ि व तन्हाना अनिल मुनकर, क्या तुम हमें नेकियों का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते न थे। क़ाला, वो कहेगा, कुन्तु आमुरुकुम बिल मारूफ़ि वला आतीही, मैं तुम्हें नेकियों का हुक्म देता था और खुद नहीं करता था, व अनहाकुम अनिल मुनकरि व आतीही, और तुम्हें बुराइयों से रोकता था और तुम्हें बुराइयों से रोकता था और उसका इर्तिकाब करता था और उनका इर्तिकाब करता था। ठीक है, अब यहाँ हम लोग इसको बस करेंगे और इसके बाद फिक्र इंशाअल्लाह।